Assalamualaikum guys. Today is our first lecture, and in first lecture we're gonna learn about the base of English, the basic knowledge of English, that is tenses. And for that we will start with our first tense, that would be present indefinite tense. Before starting that, I would like to let you know that what's meant by present. There are, three differences between, times: present, past, and future. After that, the next word is indefinite. Indefinite means the task that we have done in our routine life, in our, habitual life, and we are used to do of that. They are quite easy. You can learn it very easily. So let's start from its, we are living in Pakistan, and for knowing the tenses better, we know very well that we have to know about words recognition in Urdu. तो उर्दू में पहचान जो होगी टेंसेस की, वो हमारे पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान है हमारे पास। उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ताहूं वगैरह आता है। एंड इन इंग्लिश अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी टेंस जो है, कोई भी फिक्रा जो लिखा हुआ है, उसकी हमें कैसे पहचान होगी कि वो कौन सा टेंस है, आदर प्रेजेंट डेफिनिट है या कोई और है, तो उसकी बेहतरीन हल ये है कि हम उस फिक्रे के लास्ट वाली वर्डिंग को चेक करेंगे, जैसा कि ये है। और अगर हमें पता करना है कोई टेंस अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसका हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? उसका हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एक सिंपल से मैथड से, जो कि होगा सिंगुलर के साथ हम लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, और साथ इसके हम एडिशन कर देंगे एस और ई एस का। सिंगुलर में हमारे पास आता है ही, शी एंड इट। इसके अलावा सिंगुलर में हर वो चीज़ जो सिंगल है, हर वो नाउन, हर वो प्लेस, हर वो सिंगुलर पर्सन, कोई भी जो है वो सिंगुलर में आता है। और अगर हम बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल में सिर्फ हम साथ में यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो प्लूरल में इंक्लूड क्या क्या है? वी, दे, one more thing, I and you. Actually the thing is, we cannot say I. The right pronunciation of that word is I. We can say I with they, you are included in plural. There are many different ways of doing your tenses, but this is the easiest way in the world. You can do it very easily if you know very well about the forms. After that, we know very well that with singular we have to add s or es with first form. So when do we use s with first form and when do we use es with first form? There is a trick for you, and that is when the last letter of first form is s, h or o, then we have to use es with the first form when behind that is singular. Get it? That's very nice. And for plural, we do have only first form for that. Let's move forward for the examples. And for the example, the very simple example is वो स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो,
हम किताब पढ़ते हैं, वो नावल लिखती है। वो स्कूल जाता है, इसमें हम देखेंगे लास्ट जो है, एंडिंग जो है हर टेंस की वो हो रही है ता है, ती है या ते हैं से। सो इट वुड बी वो स्कूल जाता है, इट वुड बी he goes. Is the thing, guys, I have told you that when the last letter first form is S, H या O, then you will have to use ES when the pronoun behind that is singular. So it would be ES. He goes to school. One more thing here is तुम खाना खाते हो. So you eat food. एक चीज का अगर हम ख्याल करें तो you जो है ये तो सिंगुलर में आ रहा है, तो इसके साथ हम ऐसे ही इसका इजाफा क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें इसको प्लूरल में क्यों कंसीडर करना है? एक्चुअली द थिंग इज हम अपनी आसानी के लिए समझ रहे हैं कि हमने आई और यू को किस में कंसीडर करना है? प्लूरल में कंसीडर करना है। लेकिन द राइट थिंग इज दैट इन ग्रामर फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ जो है आप नहीं यूज करते हैं एस और एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। डिड यू गेट दैट? फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो है ग्रामर में उसके साथ हम वर्ब लगा के एस और एस का इजाफा नहीं कर सकते, ये ग्रामर का रूल है। दैट्स वेरी गुड। डिड यू गेट दैट? हम किताब पढ़ते हैं, सो इट वुड बी वी रीड अ book. That's very nice. We read a book, and we know very well that we is a plural and we only use single form with we because it's included in plural. वो नावल लिखती है, she writes. So here is the singular, so she writes. We have to use s or es with first form when the pronoun behind that is singular. So it would be, no, it's not s, it's not h, and it's not o. It's e, so we have to use only s with that. She writes a novel. Is that clear? That's pretty good. Let's move to some other examples. वो क्रिकेट खेलते हैं, बारिश होती है, and one more thing, उसामा अपने उस्ताद से पढ़ता है, सलीमा आटा गूंथती है। You know, it's a little bit traditional trend in it. सलीमा आटा गूंथती है, domestic chores. So वो क्रिकेट खेलते हैं, ये हो जाएगा they play cricket. बारिश होती है। Look students, हमने सारे के सारे जो प्रोनाउंस हमने सिंगुलर प्लूरल में कंसीडर किए थे वो सारे के सारे हम यूज़ कर चुके हैं। ही, शी, आई, वी, दे, यू, जिनमें सिर्फ एक बच रहा था जो कि था इट, तो उसके लिए हमने लिखा बारिश होती है। एक्चुअली इट जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है जिसमें हम इट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें इट जो है वो यूज़ होता है बेसिकली सीजन्स के लिए, वेदर्स के लिए यूज़ होता है। तो बारिश होती है उसके लिए हम लिखेंगे it rain because it's singular and behind that is also a singular pronoun. It would be it rains. Now the thing is rain का मतलब तो बारिश होता है,
तो फिर रेंज लगा के बारिश होना ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्लैरिटी मैं आपको देती जाऊँ, उसके लिए क्या बात है, जो रेन है एज अ नाउन भी यूज़ होता है और रेन यहाँ पे जो है एज अ वर्ब भी यूज़ हुआ है। इट मीन्स दैट रेन को हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि कोई भी देखिए हमने प्रोनाउन नहीं रखा है, हमने डायरेक्ट जो है नाउन यूज़ किया हुआ है, डायरेक्ट हमने किसी भी पर्सन का नेम यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसामा अपने उस्ताद से पढ़ता है। इसमें ना तो आई वी दे यू है, ना ही शी इट, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसामा ही को रखेंगे सिंगुलर या प्लूरल की जगह पे। तो ये हो जाएगा उसामा seeks from his, उसामा अपने उस्ताद से पढ़ता है तो ये हो जाएगा उसामा seeks from his teacher। पढ़ता है मीन्स रीड नहीं आएगा इसमें लर्न के मानों में आएगा, लेकिन लर्न जो होता है वो ज़ुबानी याद करने को कहते हैं, और सीख जो है ये सीखने के मानों में आता है। बेसिकली वो अपने उस्ताद से पढ़ता है, इट मीन्स वो अपने उस्ताद से कुछ ना कुछ सीखता है। फ्रॉम हिज टीचर, सो सलीमा आटा गूंथती है, तो सलीमा के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सलीमा का नेम यूज करेंगे। सलीमा आटा गूंथने को कहते हैं नीड, और ये नीड जो है ये के से शुरू होता है। इसको कनीड नहीं पढ़ना आपने, इसको क्या पढ़ना है, नीड पढ़ना है। नीड नीड डो। अब नीड जो है ये सलीमा सिंगुलर है एक्चुअली, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे एस, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, इधर भी हमने क्या लगा दिया था, एस लगा दिया था, क्योंकि पीछे सिंगुलर था। एक और एग्जाम्पल के साथ हम अपना लेक्चर जो है इसको ख़त्म करते हैं। वो क्या हो जाएगा, हम कोई भी नाउन जो है इकट्ठे करके उनको एज अ प्लूरल यूज करते हैं। तो हम कहेंगे अली और उसामा अखबार खरीदते हैं। अब अली और उसामा है नाउन, लेकिन ये दो हो गए हैं। अली एंड उसामा buy a newspaper. Okay, good. So okay guys, now we will end up our lecture. In this lecture we will learn about present indefinite tense. For present indefinite tense, we know very well that in this tense we will talk about present and indefinite, the things that are quite habitual, like we say उसामा अपने उस्ताद से पढ़ता है, वो खेलते हैं, बारिश होती है, अली और उसामा अखबार ख़रीदते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। हैबिचुअल हैं, यूज टू हैं हम उनके, हम अब उसको आदी हैं करने के, अपनी रूटीन लाइफ में हम इसको करते हैं। उसके बाद हमने इसकी उर्दू में पहचान देखी, जो कि है उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हमने सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट लिया था। सिंगुलर के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाया था, और प्लूरल के साथ हमने जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगाया था। उसके बाद हमने चंद उसकी एग्जाम्पल लिखी थी, जैसे कि आपके सामने है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।